welcome to Gyan for Media and I am Dr. Kritika. Friends, in the series of discussing last year's UGC NET question paper यानी कि जून 2020 का पेपर, I am here with another set of questions from question number 26 to question number 50 we will be discussing today, and this video comprises of full explanation of every question with answers. और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. प्लीज़ रेफर टू दैट वीडियो. इन दैट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चंस from question number 1 to question number 5. So as you know that the second paper of UGC NET यानी कि paper 2, and here I am talking about mass communication subject. The second paper is comprises of 100 questions in total. So I have divided this series into 4 parts. In the first part we have already discussed question number 1 to question number 25, and today we will be discussing from question 26 to question number 50. So we will be discussing 25 questions today. I'll give you answers to each questions and explanations wherever required. So please do not skip the video and उसको लास्ट तक देखिएगा. हो सकता है अगर आप बीच में कहीं स्किप कर दें तो कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या जानकारी आपसे मिस हो जाए, तो प्लीज़ डू नॉट डू दैट. इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइमर ऑन दिस चैनल ज्ञान फॉर मीडिया, please do subscribe to the channel and also do not forget to press the bell icon which is given on the right hand side of your screen, क्योंकि जो भी हम वीडियो यहाँ पे अपलोड करते हैं, चाहे पेपर 2 से रिलेटेड हो, मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो या फिर पेपर 1 से रिलेटेड हो, और एनी अदर अपडेट रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन, नॉट ओनली यूजीसी नेट बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वो सब आप तक तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब आप बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे. सो प्लीज़ डू दैट. Also share it among your friends whoever is appearing for NET exam this year in 2021, और आगे भी आपको ये वीडियो हमेशा ही काम आता रहेगा. So without much ado, let us start with today's question series from question 26 to question 50. So as you can see on your screen, this question is in Hindi. तो जिन्होंने one of my students who has provided me this question paper, he must have attempted some questions in English, some in Hindi. So the final question paper that he got, उसमें कुछ क्वेश्चंस हिंदी में दिखे और कुछ इंग्लिश में दिखे, इसीलिए आपको यहाँ पर क्वेश्चंस इंग्लिश में भी मिलेंगे और क्वेश्चंस हिंदी में भी मिलेंगे. सो दिस वीडियो इज़ बायलिंगुअल इन नेचर. हम दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस को डिस्कस करेंगे. तो जो स्टूडेंट्स हिंदी बेल्ट के हैं या फिर जो स्टूडेंट्स इंग्लिश बेल्ट के हैं, दोनों के लिए ही ये वीडियो इक्वली लाभकारी होगा. सो ऑन योर स्क्रीन, and also one more thing I would like to add on is कि those who are appearing in the NET examination for the first time, यानी कि जो students पहली बार इस साल NET का एग्ज़ाम देंगे, they can get a hang of how the questions are asked in UGC NET. So this paper is the original one, so you can get an idea that how questions are asked in UGC NET exam. And मेरे experience से I can tell you that the course has become lengthier, the paper comes in a lengthier way nowadays because आपको हर question की कुछ statements मिलती हैं. Earlier there used to be a set pattern कि starting के questions factual होंगे, then used to comes the assertion and reasoning, then matching, then chronological and then comprehension. But now the paper has become little mixed and थोड़ा lengthy हो गया है. So focus on your study and you can refer to other videos on our channel for your conceptual clearances. So now again on your screen please see question number 26, and यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई हैं, यानी दो लिस्ट दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2. सूची 1 में समाचार पत्रों के नाम हैं और सूची 2 में संपादक के नाम हैं. आपको इनको मैच कराना है. सो द फर्स्ट गोज विद द टाइम्स ऑफ इंडिया और इसके संपादक रह चुके हैं यहाँ पे मैं बता दूँ रॉबर्ट नाइट. ये बहुत ही आपने अपने आई एम श्योर आप लोगों ने ये अपने सिलेबस में पढ़ा होगा जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं कॉलेज इंस्टीट्यूशंस में. दिस इज़ अ वेरी वेरी फेमस एंड अ कॉमन टाइप ऑफ मैचिंग क्वेश्चन कि द टाइम्स ऑफ इंडिया वॉज वंस एडिटेड बाय रॉबर्ट नाइट. उसके संपादक रह चुके हैं. तो अगर आपको एक भी यहाँ पे सही आता है, एक को आप 3 से यहाँ मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में
वो सही बैठ रहा है. So that means the correct answer for this question is option number 2. And then rest of the options, rest of the matching can be done accordingly. So मद्रास मेल के संपादक थे सर चार्ल्स लॉसन. एंड उसके बाद आते हैं द लीडर के संपादक थे CV चिंतामणि. और डेक्कन हेराल्ड के संपादक थे पोथन जोसेफ. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर for this particular question. Now moving on to the next question, you can see question number 27. This is a assertion and reason question. It says, assertion says the Latin American view of development communication was not being in the world, while reason says their concept of developmental communication introduced a high level of epistemology aimed at understanding social reality. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer. यहाँ पे जो reason दिया गया है वो सही है. लैटिन अमेरिकन व्यू ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो उनका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का was introduced a high level of epistemology aimed at understanding social reality. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो क्योंकि आर करेक्ट है और ए इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज दी, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर हियर. Now let us quickly move on to the next question, which is question number 28, and it says, what kind of media is defined by Wang and Dissanayake as a communication system embedded in the culture which exists before the arrival of mass media and that still exists as a vital mode of communication? So from the question itself you can get an idea that they are talking about the culture, which the communication system which was embedded in the culture and which existed before the arrival of mass media. तो कल्चर की जहाँ बात होती है बहुत हद तक वहाँ पे फोक मीडिया की हम बात कर रहे होते हैं. सो हियर द करेक्ट आंसर इज फोक मीडिया. सो दिस इज हाउ, इवन इफ यू हैव नॉट heard about this philosopher or this theorist, even if you have not read about them, you can clearly make out from the question itself कि उसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है. सिंस UGC नेट एग्जाम में देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यू आर सपोज टू ऑप्ट ईच एंड एवरी question, you are supposed to answer each and every question. So the correct answer for this question is option number 3, which is folk media. Now question number 29 says पाठ और सामाजिक संरचना के मध्य क्या संबंध होता है. तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, विच इज माध्यमीकृत. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. अगेन ये मैचिंग का क्वेश्चन है. यहाँ पे एक सिद्धांत दिया गया है, यानी कि कॉन्सेप्ट दिया गया है, और उसके प्रतिपादक कौन थे, यानी कि उसके करस्पॉन्डिंग फिलोसोफर कौन थे. सो आपको यहाँ पे अलग अलग आप देख सकते हैं दिए गए हैं. कल्चर सिंक्रोनाइजेशन की बात जो है वो जर्गन हैम्बरमस ने की थी. और यहाँ पे अगेन मैंने कहा अगर आपको एक भी आता है तो यू कैन वेरी इजीली मैच ऑन दी अदर्स. तो इसी तरह से हम दूसरे देख लेते हैं. कल्चर इम्पीरियलिज्म की जो बात है वो जे टॉमलिशन ने की थी. देन कॉरपोरेट कॉलोनाइजेशन की जो बात है वो सीज हेमलिंक ने की थी. और हाइब्रिडाइजेशन की जो बात है वो W रवे एंड V शेलिंग ने की थी. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. सो A goes with 1, B goes with 4, C goes with 3 and D goes with 2. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन 1. हेबरमास ने बेसिकली सजेस्ट किया था कि दैट मॉडर्न लॉ रादर दैन हैविंग रैशनलाइज्ड into a completely functional entity remains in the need of moral justification in terms of practical discourse on the rightness of norms, and he talked about cultural imperialism. तो कल्चरल इम्पीरियलिज्म की जहाँ पे बात आएगी वहाँ पे हम बात कर रहे होंगे हैम्बरमैन की.
कल्चरल सिंक्रोनाइजेशन की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे हैम्बरमैन की। ये यहाँ पे ये थोड़ा सा करेक्शन है। Then the next question is question number 31. The social categories perspective of communication is based on a collection of, so number 1 is ethical views, religious principles, political differences या stereotypes held by social scientists. So here the correct answer is stereotypes held by social scientists. जब हम social categories perspective of communication की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं स्टीरियोटाइप्स हेल्ड बाय सोशल साइंटिस्ट की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषाधिकार प्राप्त दस्तावेज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विधि से संबंधित है? तो ये विधि है हमारी साक्ष्य। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Now let us quickly move on to next question, which is question 33, and it says मीडिया शोध में निम्नलिखित में से किसमें गोपनीयता के अनुप्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो इसका सही जवाब यहाँ पे है सार्वजनिक स्थल प्रेक्षण की, यानी कि इसमें से एक हमारी स्टेटमेंट है सार्वजनिक स्थल प्रेक्षण, और बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। सार्वजनिक क्रियाकलाप भी यहाँ पे सही है, और सार्वजनिक अभिलेखों में दर्ज सूचना भी यहाँ पे सही है। तो CDE जो है वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34, एंड इट सेज समालोचकों द्वारा सम्मानित फिल्म ब्लैक जिसे अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिले किसने निर्देशित की थी, माफ़ कीजिएगा। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। ब्लैक जो है संजय लीला भंसाली ने निर्देशित की थी। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। सो क्वेश्चन 34 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। अब ये असर्शन रीजन का यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि हिंदी में है, और आपको अगेन फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है संवैधानिक अधिदेश के आलोकों में भारत की कंपनियों को वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए, ये इनका पहला कथन है। और उसके बाद यहाँ पे है भारत के संविधान में कंपनियों को नागरिक के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, और इस तरह की स्वतंत्रता देने संबंधी किसी भी प्रस्ताव के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी कि करेक्ट तर्क है यहाँ पे, यानी कि रीज़न जो है वो सही दिया हुआ है लेकिन जो असर्शन है वो गलत है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ए गलत और आर सही। Now let's move on to next question, question 36, and it says that you have to match newspaper with its country. तो यहाँ पे सबसे आसान जो है द इकोनॉमिस्ट है। द इकोनॉमिस्ट जो रिलीज़ होता है आपका वो द यूनाइटेड किंगडम से होता है। तो डी का करेक्ट मैच जो है वो ऑप्शन 3 है। देयरफॉर अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। देन नेशनल ऑब्जर्वर को अगर आप करेंगे टैली, तो नेशनल ऑब्जर्वर भी काफ़ी फेमस अखबार है, वो ऑस्ट्रेलिया से रिलीज होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर हियर। नाउ क्वेश्चन 37 अगेन अ मैचिंग क्वेश्चन। यहाँ पे इन्होंने थ्योरीज दी गई हैं और उसके कौन प्रोपोनेंट हैं उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो पहला जो है इनॉक्यूलेशन थ्योरी जो है वो दी थी विलियम मैकगुइर ने। तो यहाँ पे ए का सही मैचिंग है 3, तो करेक्ट मैचिंग फॉर ए इज़ 3। देयरफॉर दी, लेकिन आप यहाँ देखिए ऑप्शंस में 1 और 4 में दोनों में ए के आगे 3 है। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सोशल जजमेंट थ्योरी जो है वो दी थी मुज़फ़्फ़र शरीफ ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जहाँ पे ए इज़ फॉर 3, बी इज़ फॉर 4, सी इज़ फॉर 1 एंड डी इज़ फॉर 2। तो बेसिकली अगर हम इन थ्योरीज़ की बात करें तो इनॉक्यूलेशन थ्योरी जो है वो एक साइकोलॉजिकल या कम्युनिकेशन थ्योरी है जो कि विच एक्सप्लेन्स दैट हाउ एन एटीट्यूड और बिलीफ कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट परसुएशन और इन्फ्लुएंस इन सेम वे एज बॉडी कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द डिफेंस। तो इस तरह की यहाँ पे
बात की गई है. Then the social judgment theory, it is a self-persuasion theory which mainly focuses on internal processing of person's own judgment in regard to relation with the communicated message. Then cognitive dissonance जो है एक बहुत famous theory है, psychology की है, where which says that we have an inner drive to hold all our attitudes and behaviors in harmony. The cognitive consistency theory talks about the preferences for thoughts. तो ये सारी theories आपके लिए बहुत important है. Please do read about them and try to understand the concept. मैंने आपको short में यहाँ पे बता दिया है कि इसके पीछे का क्या concept है. Now question 38 says in Daniel Lerner's model of social development, what two functions does mass media perform that are conducted to modernization? So Daniel Lerner का जो social development model था, it talked about increasing urbanization. It says that increasing urbanization lead to the growth of mass media. और इस मॉडल में कहा गया है कि this is the model of societal transformation for poor countries. So this is about social development model of Lerner, and this is a very famous model again. So please do read about this model. और यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन 3, मास मीडिया एडवोकेट्स एंड सपोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन. जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन की बात की गई है. नाउ लेट अस क्विकली सी क्वेश्चन 39. मानहानि संबंधी दावों में क्षतिपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो हम यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इन्होंने दी हैं. सारी स्टेटमेंट्स को जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो हम पाते हैं कि सिर्फ ए, बी और सी यहाँ पे सही है, यानी कि वादी की सामाजिक स्थिति, क्षति की प्रकृति और प्रकाशन की विधि. सो ए, बी, सी इज द करेक्ट statements here. So the right answer is option 4. Now next question, question 40. मैं थोड़ा जल्दी इसलिए चल रही हूँ क्योंकि हमें 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं एंड अभी हमारे 10 क्वेश्चंस पूरे बचे हुए हैं. क्वेश्चन 40 says जनसंपर्क किस प्रकार से पत्रकारिता के सदस्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो आपका राइट है, ए, सी, डी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है. वे जनता से संवाद करते हैं, वे विधि स्रोतों से सूचना जुटाते हैं और उनका उद्देश्य लोगों का स्वभाव परिवर्तन करना होता है. तो जनसंपर्क के बारे में यहाँ पे बात की गई है और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, केवल ए, सी एंड डी. Now let's see question number 41. Again in Hindi it says निम्नलिखित सीमा पार प्रसारण निगमों के सही कालक्रम की पहचान कीजिए. तो यहाँ आपको अरेंज करना है. सही जवाब इसका है वॉइस ऑफ रशिया, उसके बाद आता है BBC वर्ल्ड सर्विस, उसके बाद आता है ऑल इंडिया रेडियो और फिर आता है वॉइस ऑफ अमेरिका. सो द करेक्ट ऑर्डर इज DBCA which is option 2 here. Now let's move on to question 42 which says advertising sensitive issues like AIDS and environmental awareness fall under. तो ये इस तरह के जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जो कि अवेयरनेस के लिए होते हैं, कॉर्पोरेट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर फॉल करते हैं. तो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन 4. नाउ नेक्स्ट इज इंडियन लैंग्वेज न्यूज़ पेपर्स एसोसिएशन. उक्त यहाँ पे दूसरे संगठन यहाँ पे दिए गए हैं और उनको आपको कालक्रम अनुसार अरेंज करना है. तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूज़पेपर सोसाइटी, उसके बाद आएगा ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडिटर्स कॉन्फ्रेंस, फिर आएगा इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन और फिर आएगा एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन. सो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर हियर, CDAB. नाउ लेट्स मूव ऑन. ये सारे के सारी ईयर्स आप लोग मैच करिएगा, देखिएगा. इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में यू हैव टू एंड यू शुड स्टडी फॉर मोर नॉलेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन यू हैव टू सही कालक्रम में आपको इनको लगाना है. यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, पैटर्न थोड़ा चेंज है यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का. तो ऑप्शन में है सबसे पहले आएगा न्यू इंडिया, फिर आएगा स्वराज्य, फिर आएगा फॉरवर्ड एंड फिर आएगा फ्री प्रेस जर्नल. सो DBCA is the correct order for this and option 2 is the right answer for question 44. Now let's move on to the next question which is question number 45.
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेटिव एक्शन एंड स्ट्रैटेजिक एक्शन, यहाँ पे पूछा गया है। तो कम्युनिकेटिव एक्शन ट्राइज टू अचीव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वाइल स्ट्रैटेजिक एक्शन colonizes other people's life world and is manipulative. So option C is the correct answer here. Therefore, fourth is the right answer. Question 46 says the commercial content in mass media is often referred to. इसका सही जवाब है नॉइज़। जो कमर्शियल कंटेंट होता है उसको हम अक्सर नॉइज़ कह के बुलाते हैं। सो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 47 विच सेज इमर्सिव मीडिया हैव इमर्ज्ड फ्रॉम, कहाँ से आया है? तो वो ऑनलाइन मीडिया से आया है। सो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर हियर। Question 48 says originally the copyright concept came into being under and, so ये copyright law भी copyright का जो concept है that is also very important and it comes under common law. So please do read about all these laws where statutory law, constitutional law, international law and common law, these are all very important. हो सकता है इस साल question दूसरी laws में से पूछ लिया जाए। Question 49 says फोटोग्राफी के संगठन नियम निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पता करना है। रूल ऑफ थर्ड्स इज़ द करेक्ट, देन गोल्डन रेशियो भी सही है और रूल ऑफ ऑड्स भी यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 50 एंड इट सेज जनसंपर्क के मुख्य घटक क्या है, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जनसंपर्क के? तो ए मीडिया संबंध विच इज़ करेक्ट, प्रचार भी यहाँ पे सही है, सामुदायिक संबंध भी यहाँ पे सही है, लेकिन डी और ई को अगर आप देखें तो ये गलत ऑप्शंस हैं। सो ए बी सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस question number 50. So these were the 50 questions from UGC NET June 2020 paper and I hope कि आपको कुछ insights मिली होंगी कि किस तरह के questions पूछते हैं, किस तरह से आपको आगे की अपनी पढ़ाई करनी है और कुछ explanations जहाँ पे required थे I have given you. I hope this video will turn out to be useful for you all. Please do like the video and do subscribe to Gyan4 Media. Also, you can follow us on the social media handles like Instagram and Facebook. We are there for any kind of update. You can follow us there. Also, in the next video, I'll be coming up with next set of questions, question 51 to question 75. So